الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے ہم پہلے ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ کے متعلق گزشتہ 2 ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ ان 2 اصطلاحات کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج اسی آیت کی تیسری اہم اصطلاح یا تیسرے اہم جز کی طرف ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا کہ یہاں پر مال خرچ کرنے سے مراد نفلی صدقات ہیں، کیونکہ صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقات واجبہ اور دوسری صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ کے اندر زکوٰۃ اور عید الفطر کا جو فدیہ ہے جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، اسی طرح قسم کا کفارہ، یہ چیزیں صدقات واجبہ کے اندر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جہاں بھی انسان اپنا مال خرچ کرے وہ صدقات نافلہ میں شمار ہوتا ہے۔ واجب کا معنی یہ ہے کہ جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ لیکن صدقات نافلہ کے اندر بندے کو اختیار ہے، اگر چاہے تو کچھ مال خرچ کرے اور اگر چاہے تو خرچ نہ کرے، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر مال خرچ کرنے کا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک دانہ زمین کے اندر بو دیا جائے اور وہ ایک دانہ 7 سٹوں کو اگائے اور ہر سٹے کے اندر، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو ایک دانہ
अपने साथ 700 दानों को लेकर आता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़े की मिसाल जो है वो ज़मीन में बोए जाने वाले दाने से दी है कि जिस तरह ज़मीन के अंदर किसान एक दाना बोता है और एक दाना कई कई 100 दाने अपने साथ उगाता है, पैदा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, बिल्कुल इसी तरह जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है उसका सवाब उसके अंदाजे से कई गुना ज्यादा होता है, जिसका दुनिया में रहकर अंदाजा लगाना नामुमकिन है। हदीस के अंदर आता है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में एक छवारा सदका करता है तो अल्लाह ताला उस छवारे को अपने दाएं हाथ के अंदर ले लेते हैं और उस छवारे की इस तरह परवरिश करते हैं जिस तरह तुम में से कोई एक अपने बछड़े की परवरिश करता है, और उसको बढ़ाते रहते हैं यहाँ तक कि वो एक छवारा ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। तो यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का इतना सवाब है कि दुनिया में इंसान उसका अंदाजा नहीं कर सकता। दुनिया का कोई कैलकुलेटर, कोई कंप्यूटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों की वुसअत और ख़जानों की हुदूद को नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रास्ते के अंदर माल खर्च करने के इतने फ़ायदे रखे हैं कि दुनिया के अंदर भी उसका फ़ायदा है और आखिरत के अंदर भी फ़ायदा है। रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक दफ़ा किसी ने रोटियां भिजवाई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बांदी से कहा कि ज़रा इन रोटियों की तादाद गिनो। तो जब उसने उनको गिना तो वो 9 रोटियां निकली। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इनमें एक रोटी कम है। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बांदी कहने लगी कि नहीं, जिन्होंने आपके पास रोटियां भिजवाई थी मैं खुद उनके पास से लेकर आई हूँ, मैंने इसके अंदर कोई कमी नहीं की, जितनी उन्होंने मुझे दी थी उतनी मैंने आप तक पहुँचा दी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इसरार था कि नहीं, एक रोटी इसके अंदर कम है। आखिरकार बांदी ने एतराफ़ किया कि मुझे शदीद भूख लगी थी तो इनमें से मैंने एक रोटी निकाल कर खा ली। फिर उसने हैरान होकर पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इसमें 10 रोटियां थी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने आज अल्लाह के रास्ते में एक रोटी खैरात की थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक नेकी करता है तो हम उसको एक नेकी के बदले में 10 नेकियां अता करते हैं। तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन था कि एक रोटी मैंने सदका की है तो इसके बदले में 10 रोटियां मुझे ज़रूर मिलेंगी। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करने का आखिरत के अंदर जो सवाब मिलेगा वो तो अपनी जगह है और उसका दुनिया में रहकर अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करने का, खर्च करने का इतना फ़ायदा है कि दुनिया के अंदर भी वो फ़ायदा ज़ाहिर होता है। और इस बात को आजकल के जदीद मईशतदान, मुआशियात के माहिरीन तस्लीम करते हैं। और एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने एक किताब लिखी जिसके अंदर उसने बिजनेस करने के 40 उसूल बयान किए कि इन 40 उसूलों पर अगर कोई अमल करेगा तो उसको दौलतमंद होने से कोई रोक नहीं सकता। तो उसमें उसने जो सबसे पहला उसूल अपनी किताब के अंदर लिखा, उसके अंदर उसने ये लिखा कि तुम अपनी माहाना आमदनी का 10% हिस्सा गरीब लोगों पर चैरिटी करो, खैरात करो, तो तुम देखोगे कि अगले महीने तुम्हारी आमदनी और तुम्हारा बिजनेस जो है वो दुगना हो जाएगा और तुम्हारे मुनाफे में, तुम्हारे प्रॉफिट के अंदर कई गुना हर महीने इजाफा होता चला जाएगा। और उसने कहा कि इस उसूल को इतना आजमाया गया है कि अब इस उसूल के गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं।
तो काफिर भी इस बात को मानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर, मुस्तहिक़ीन पर अगर खर्च किया जाए तो उसका आखिरत पर तो उनका कोई ईमान नहीं है, लेकिन दुनिया के हवाले से वो यकीन रखते हैं कि जब हम अपना कुछ हिस्सा आमदनी का चैरिटी करते हैं, खैरात करते हैं, मुस्तहिक़ीन में तकसीम करते हैं, तो उसका हमें अपनी आमदनी में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी तिजारत के अंदर फ़ायदा होता है। चुनाचे आप इस बात को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर और इसकी रिसर्च भी कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर कितनी NGOs हैं जो यहूदियों की या ईसाइयों की या दीगर मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों की बनाई हुई हैं, और वो लोग अपनी माहाना या सालाना आमदनी का बेतहाशा हिस्सा चैरिटी के अंदर सर्व करते हैं और गरीबों और मुस्तहिक़ीन पर अपने आमदनी का बहुत सा हिस्सा खर्च करते हैं। इमदाद के नाम पर दूसरे ममालिक में भी अपनी इमदाद भेजते हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि वो सवाब के लिए ये काम नहीं करते, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि जब कोई शख्स अपने माल का कुछ हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के ऊपर खर्च करता है तो उसका माल कम नहीं होता। इसी बात को सरवर कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका इंसान के माल को कभी भी कम नहीं होने देता, यानी दुनिया के अंदर भी माल के अंदर कमी नहीं आती, और जो आखिरत के अंदर उसका सवाब मिलना है उसका मकाम तो अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि मुत्तक़ीन वो हैं जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। तो इस आयत करीमा में इन अल्फाज के अंदर इस बात की तरफ इशारा है कि तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर जो माल खर्च करते हो वो तुम्हारा अपना नहीं है कि तुम ये समझो कि ये हमारा माल है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रज़क़नाहुम, कि हमने ही उनको अता किया है, यानी अल्लाह ताला ही अता करने वाले हैं, और अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से ही हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 28वें पारे सूरह हशर के अंदर बयान फरमाया कै ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात को इसलिए वाजिब किया है ताकि दौलत तुम में से दौलतमंदों के दरमियान महदूद होकर, महबूस होकर ना रह जाए, बल्कि दौलत की सर्कुलेशन होनी चाहिए। दौलत और माल जो है वो एक ही जगह पर मुर्तकिज होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि माल जो है वो गर्दिश करता रहना चाहिए कि अमीरों के पास जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से माल आया है वो अल्लाह की तरफ से उनके पास अमानत है, और उस अमानत में गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का, ज़रूरतमंदों का हिस्सा है। तो अगर कोई दौलतमंद उस माल के ऊपर सांप बनकर बैठ जाए तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर वईदें भी बयान फरमाई हैं कि जो लोग अपने माल के अंदर बुखल करते हैं और माल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो वो ये ना समझें कि ये बुखल और कंजूसी करना उनके हक में बेहतर है, बल्कि फरमाया कि ये कंजूसी उनके हक में बदतर है, और यही माल क़यामत के दिन उनके गले में तोक बनाकर पहनाया जाएगा। और हदीस मुबारका के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल एक अज़े की शक्ल में लाकर उसके गले में पहनाया जाएगा, और वो अज़हा जो है उसकी दोनों बाछों को चीर देगा और उसको कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा जमा किया हुआ खजाना हूं। तो गोया कि जो शख्स दुनिया में माल के अंदर कंजूसी करता है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करता, तो वो माल के ऊपर, दौलत के ऊपर सांप बनकर बैठा हुआ है, और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना दुनिया के अंदर माफ करेंगे और ना आखिरत के अंदर माफ करेंगे, बल्कि उसके लिए जो है दुनिया के अंदर भी पकड़ है और आखिरत के अंदर भी पकड़ है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों की मजम्मत कुरान करीम में बयान फरमाई है जो माल जमा कर करके रखते हैं और बार बार माल को गिनते रहते हैं कि अब इतना जमा हो गया, अब इतना जमा हो गया, लेकिन खर्च करने का नाम नहीं लेते, और माल खर्च करते हुए
घबराते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं। और इसके मुकाबले में जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तारीफ फरमाई है और अपने खास बंदों में उनका शुमार फरमाया कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वही अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करते हैं। कुरान करीम में बेशुमार मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल खर्च करने वालों की तारीफ फरमाई है। तो माल खर्च करने में पहला दर्जा सदक़ात वाजिबा का है कि जिस पर ज़कात और दीगर सदक़ात वाजिबा हों, पहले उनको अदा करे। और उसके बाद दूसरा दर्जा सदक़ात नाफिला का है कि ये मतलब नहीं कि ज़कात अदा कर दी तो अब फ़र्ज अदा हो गया तो नफली सदक़ात से पहलू तही करे और नफली सदक़ात से बिल्कुल जान छुड़ाए, ऐसा करना भी मुनासिब नहीं। बल्कि अगर किसी के पास इस्तिताअत हो, गुंजाइश हो और उसके पास अल्लाह ताला ने उसको वुसअत अता की हो तो ज़कात अदा करने के अलावा नफली सदाकात भी करे और ज़रूरतमंदों की गाहे बगाहे मदद करता रहे। जितना ज़्यादा वो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करेगा, अल्लाह ताला उससे उतना राज़ी होंगे और उसका शुमार अल्लाह के उन बंदों में होगा जिनको अल्लाह ताला ने मुत्तकीन का नाम दिया, यानी जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हर वक्त अल्लाह को याद रखने वाले हैं और कोई काम अल्लाह की रज़ा के खिलाफ नहीं करते। तो कुरान करीम की आयात मुबारका का सही मफहूम अल्लाह ताला हमें समझने की भी तौफीक अता फरमाए और उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।